अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मैं आप लोगों को मिनी CEX और डोप्स के फॉर्म फिल करने का तरीका सिखाती हूँ। जो CPSP के फॉर्म्स हैं, मुझसे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और मुझे जो इंडिविजुअली बताना डिफ़िकल्ट था, तो मैं इसकी एक शॉर्ट सी डेमो बना रही हूँ। ये आप सब लोगों के लिए जिनको नहीं समझ आ रही। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, एज यू कैन सी, दिस इज़ मिनी CEX एंड डोप्स, सो आई विल गो फॉर डोप्स। Now you have to go to the option of the add. Now select here the option. There will be only option because you all are from the anesthesiology, so you will select this. Now here is my name. As you can see, this is my name. Now assessment date, I will put assessment date later. Let me show you the trainee. Now as soon as you will click this box, the name of your trainees will appear, and as you can see, there my trainees are here. So it's one of my trainee. Now she's R3, so I will go for her. So I'm just showing you just one example how to do it. You have to do it in real, and then you have to fill all these boxes later on. Khair, okay, this is R3. She is R3. So the settings, okay, where I have checked her skills. There was a procedure room. Did I check her in ICU, her skills, operating room, inpatient ward and ward. Okay, I will select the operating room. Yes, assessment date, as far as I remember, it was in September 19. And diagnosis of the patient, because it was a surgical patient, so I will just write the surgery right now. Male female patient, age of the patient, it was around 40 to 50. Now complexity, because she is R3, so we can go for moderate or average. Oh wait, sorry. Okay, now here. Now year of assessment. So it was her third year started, but when I did it, she was in second year. Now she's in third year. So when I did it, it was her second year, and I have checked her in her third quarter. And the topic selection, it was epidural and caudal. So they have given you the option. Now you have to fill this. Dopes is like she have to perform it in front of you, and you have to mark all these boxes. Now here's the indication. Allow the indication anatomy. Did she follow all that? Yes, of course she knew the anatomy and she followed the steps. Satisfactory. Informed consent of the patient. Yes, she told them the preparation for the procedure, and all these you can read them one by one, and you can just select them. Okay. Did she use anesthesia, analgesia or something? So there was no need. And observance of sepsis, yes, of course it was satisfactory, and so on. Safe use of instruments and all that. Okay, now about the strength. So I will write down that she was skilled. She was skilled. The strength was she was very skilled and confident and all that. You can write whatever you want in the strength section. So how did you find her procedure? What were the strengths of her procedure, and suggestions to improve. So satisfaction level was 4 out of 5. There is always room for improvement. And do you want her to do it again? Yes, I want to do it again in front of me, and then I will submit. Oh, there is something missing. Oh yes, the name of the procedure is missing. She did epidural. So now it's ready to submit. You will submit this now. उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वर्क प्लेस असेसमेंट CPSP पे हमने कैसे करना है, तो डोप्स का मैंने अभी बता दिया। अब हम मिनी CEX पे जाते हैं। इसमें मैंने कुछ लोगों की ऑलरेडी की हुई है, और मैं अभी अपने तो PGs की ऐड करने लगी हूँ, तो यू कैन सी हाउ टू डू इट। सो सेलेक्ट स्पेशलिटीज़ में, एज यू नो, वी आर ऑल फ्रॉम एनेस्थीसिया, सो वी विल ऐड दिस हियर। अब मेरा नाम ऑलरेडी इसमें आ रहा है, उनका सुपरवाइज़र मेरा नाम आ रहा है। मेरे पास ना अपने पेजेस रखे हुए हैं साथ, जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ कि मैंने इनकी असेसमेंट कब की थी। तो इट वाज लाइक अराउंड 19। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ट्रेनीज़ नेम, सो इट्स कॉन्फिडेंशियल, सो लेट मी हाइड इट। जी, मैंने अपनी ट्रेनी का नाम वगैरह सब सेलेक्ट करके उसको कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। सेटिंग्स क्या थी? अभी चूँकि मिनी CEX है, यूजली ये हम करते हैं, लेट्स से हमारी OPD है, तो ज़्यादातर हम OPD में कर लेते हैं। जैसे हमने प्री एनेस्थीसिया चेक करना है उनका, ठीक है। अब पेशेंट है, उसकी सर्जरी होनी है, तो
अब ये पेशेंट की एज थी अराउंड 50 एंड 56 के बीच में है, मेल पेशेंट था। अब यहाँ पे हम जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम क्या चेक करना चाहते हैं? अभी मेरी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है तो हम इसमें फ़िलहाल इसको मॉडरेट एवरेज रखेंगे। ईयर ऑफ असेसमेंट उसका सेकेंड ईयर था और मैंने उसको उसके 4th क्वार्टर में चेक किया है, ठीक है। अब आता है कि आपका टॉपिक क्या था, ठीक है। अब इसमें प्री ऑप असेसमेंट है। प्री ऑप असेसमेंट ऐसे 1-2 पेशेंट की है, ऐसे 3-4 पेशेंट की है। फिर इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने क्या क्या किया था। हमारा सिंपल था, हमने ऐसे 3-4 किया था, ठीक है। उसमें हमने इन सब चीज़ों पे फोकस था डेफिनेटली। अब प्री एनेस्थीसिया है तो हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं। हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट तो नहीं आएगी लेकिन इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स थी, ठीक है। अब हमारे नीचे इनका फॉर्म है, आपने इसको फिल करना है। आपने जो ऑब्ज़र्व किया था अपने स्टूडेंट की, अपनी पीजीआर इस टाइम वो जॉब कर रहे थे और आप उनको देख रहे थे, तो ये सब लिखा हुआ है कि उसने पेशेंट्स को बताया था कि वो किस चीज़ की कर रही है, इन्फॉर्म, उसकी इंटरव्यूइंग स्किल कैसी थी, सेटिस्फैक्ट्री। आप इसमें अबव एक्सपेक्टेशन भी हैं, जैसे भी कर लें, ठीक है। फिर ये लाइक सिस्टमेटिकली गया था। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फाइंडिंग्स थी। उसने जो कुछ किया उसको जस्टिफाई किया था। इसमें इसका वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसमें प्रोफेशनलिज्म था, ऑर्गेनाइज तरीके से था या वो हैज़र्ड कर रहा था आपका पीजी, और ओवरऑल कॉम्पिटेंस लेवल क्या था, सो इट वाज गुड, ठीक है। अब इसमें उसकी स्ट्रेंथ आएंगी और उसके लिए आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि अगर वो किस तरह इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद आता है कि आप उसे किस लेवल पे रख रहे हैं। मैं उसे सेटिस्फेक्शन लेवल 4 है। इनकाउंटर आप चाहते हैं मैं दोबारा परफॉर्म करे, येस मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने एक दफ़ा दोबारा परफॉर्म करे। इसके बाद आप इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे, दैट्स ऑल।